وائندی میرے نزدیک انہم لم یفہموا مراد شیخ، میرے نزدیک ابن تیمیہ ابن قیم تفتازانی نے شیخ کی مراد کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کے نزدیک بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے آپ کا والا حدیث کے نزدیک نہیں، میرا نزدیک ہے اپنے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے بولو نظرو اگر خواہشی بات ہے نا. تو تفتزانی کون ہے؟ تفتزانی کی بھی اندہ ہے نا، علمانی ہو کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا. تفتزانی کے پاس بھی تو اندہ ہے نا، اس کے پاس کہاں قرآن اور حدیث ہے؟ تفتازانی کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن اور حدیث کو تفتازانی میں تجدید پر کہاں ہے اس کے پاس اس طرح حدیث؟ قرآن اور حدیث کے مفہوم کے بعد حق پر نہیں تھی، قومیات کفار میں سے اپنی منشا کی بات دلیل خان صاحب آپ نے مجھے اب بٹھانا ہے، وہ اپنے ادھر حکمت کی دکان میں کام کروں گا. آؤ بسم اللہ. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، تو قرآن اور حدیث کا مفہوم ادھر کھانا بھی کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، باتیں بھی کرے گا. ایک اگر وہ آپ کا اختلاف کہ آپ 2-3 گھنٹے سے مدد ماری کر رہے ہیں، آپ کے اختلاف کس بات ہے؟ آپ ہیں کس سے؟ آپ کا نظریہ ہے اس کو تو واضح کریں. آپ بات واضح نہیں ہوئی، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. اختلاف آپ کو معلوم ہے جس بات کا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں دیکھیں ان کو الحمدللہ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ وحدت الوجود کی جو تشریح علماء دیوبند نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس بات کو انہوں نے تسلیم کی. اب باقی رہا مسئلہ یہ ہمارا نہیں ہے. اس دائرے میں جس دائرے وہی جو تشریح کی ہے، ہو سکتا ہے اور کتابوں میں کوئی اور تشریح اور ہو سکنے کی کیا چیز، میں نے یہ حق میں نہیں ہو سکنا کیا چیز ہے، تشریح میں نے سنی بھی نہیں اور پڑھی بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا پہلے دیکھ لینا آگے بات کر لیں. حضرت ہو سکنے کا آپ چھوڑ دیں، اس میں پاسبلٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں آسمان کے اوپر ہوں، یہ پاسبلٹی ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے یہ قضیہ ممکن ہے، آپ ان اصلاحات کو سمجھ بھی نہیں پاتے. وہ سمجھنے ہم نے کوشش پہلے کوشش کر رہے ہیں. آپ جو ہے ہاں لنک ہے، بالکل بالکل لنک ہے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے، میں ہو سکنے کی پر بات کرتا ہوں کہ ہو سکنا یہ قضیہ ہے جو پاسبلٹی شو کرتا ہے. ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اس کو چھوڑ دیں آپ، اس کو چھوڑ دیں آپ. نہیں پاسبلٹی کی بات ہے نا. I am going to tell you, you need not to use the English word. No. Listen, just listen to me. You can't speak really Urdu, yeah? You have to speak Urdu. Are you, if you want to discuss Urdu bani koi. Really? Aam faham khabar ho ka taqwa banda hai. Taqwa shoot, taqwa prida. What is the meaning of taqwa? What is the meaning of taqwa? آپ ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، آپ خاموش رہے. پاسبلٹی، امکان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے ایک چیز کو. یہی تو پہلے سے کر کے عدم علم اور علم عدم میں تلازم نہیں ہے. علم عدم اور عدم علم. ابھی یہ بات آپ کیسے سمجھیں گے جب آپ روزانہ ہو کر بیٹھ جائیں گے ان کے سامنے یہ بات سمجھائیں گے. علم کی ضرورت، ہاں علم کی ضرورت ہے. بات صحیح ہے. جب علم کی ضرورت ہے، جی ضرورت بھی ہے ہمارے پاس آدمی ہے جو ضرورت پوری کی. چلو ان کو دیکھیں آپ کو مناظر تو نہیں ہو رہا، موبائل تو نہیں ہو رہا. جب آپ کو علم کی ضرورت ہے پھر آپ مانیں، تسلیم بھی کریں. آپ ایک چیز کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے اور وہاں پر یہ کہہ رہے کہ یہ ہے جو اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں میں استعمال کرتا ہوں، آپ سمجھ بھی نہیں پاتے. ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھا، پہلے تو آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ واٹ از دے انگلش میں اردو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مناظرے کی اصول اور شرائط کیا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم نا. لیکن ہاں نہیں معلوم. پھر میں آپ پھر میں آپ سے دوسرا سوال یہاں پر کرتا ہوں کہ آپ نے کہا ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا ہو سکنے کی بات آپ چھوڑ دیں کہ وہاں پر امکان کی بات ہے. امکان میں بہت ایک وسیع مفہوم ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی بات نہ کریں. صحیح. ابھی میں نے آپ سے پوچھا امکان کیا چیز ہے، امکان آپ نہیں سمجھ پاتے. یہاں پر جی ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیکھیں میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہو سکنا، اس کو چھوڑ دیں آپ. جو ان کے اس وقت موجود کو لازم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہو سکنے کو تبھی ہوئے گی، میں نے اس کو کہا کہ ہو سکنے کو آپ چھوڑ دیں. یہ ہو سکنا کیا چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو ریئل چیز ہے اس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں.
तफ्तज़ानी की एक मिनट, तफ्तज़ानी की आपने बात की, तफ्तज़ानी ने कुफर का फतवा दिया। तफ्तज़ानी तो खुद कहते हैं कि रकबा अलीयुन व फर्र मुआविया, उसकी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या अक़वाल है, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम ना। तो वहाँ पर ये उसके कुफर के फतवे को लेकर इब्न अरबी रहमहुल्लाह ताला पर आप चस्पा करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहते हैं तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? ये आपको नहीं मालूम? हम ये कह देंगे कि उन्होंने कुफर फतवा दिया उनके बारे में। कुछ जब आपको पता नहीं आप कहेंगे। आप मुझे देखो आप की बात आप नहीं कर सवाल करता हूँ, मुझे नहीं पता। एक मिनट कि क्या उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं तो बेहतर इंग्लिश स्पीच के जिस आदमी ने आपको इस्लाम पे लगाया उसको लेके हम बात करें, जिसको सारी बातों को पता हो। मतलब दस जमा हो रहा है। अभी आप उर्दू में बात करें तो मैं आपसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात ना करें। इंग्लिश वाली बात भी मेरा। हाँ मैं समझता हूँ, मुझे अरबी भी आती है, अगर आप अरबी में बात कर सकते हैं मैं अरबी में भी बात करूंगा। सिर्फ बात ये है कि देखिए आप आलिम आपके सामने बैठे हुए हैं, एक मिनट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप खल्क में बात नहीं कर रहे, नहीं एक मिनट, मैं इंग्लिश में बात कहते हैं कि इंग्लिश में बात आलिम को मानो नहीं, मैं एक मिनट आप मेरी बात तो सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने आलिम बैठे हुए हैं, आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में बात की, वरना मुझे इंग्लिश के मतलब कि लकीर में लिख दूंगा, ये क्या है? एतराज नहीं है, मैं लिख दूंगा, मैं 1000 लिख दूंगा, आप लिख दे। अल्हम्दुलिल्लाह खल्क बस नहीं करें, समझते हैं बात, खल्क बस नहीं करें, आम फेम में बात करें। अगर वो इस बात पे एतराज करते हैं, आपका नहीं बनता आपका नहीं बनता इस बात पे एतराज करना। मैं लिख दूंगा, पूरे लाहौर में देख ले, मैं लिख दूंगा, कोई जवाब दे दे, ये नहीं कहें आप, ये आप नहीं कहें कि इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। आप कमी में हो, मैं भी कमी में हूं। खल्क में मजाक मत करें, अभी इंग्लिश की मैंने इसलिए गुफ्तगू की ये इंग्लिश की मादा आपको एतराज है तो कोशिश कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, मुंह से इंग्लिश वर्ड निकल जाए। समझे एतराफ फिर कुसूर बदे योटी की बंदे होएंगे, कल इंग्लिश शुरू की, कल अरबी शुरू की, कल उर्दू शुरू की। आम में बात करो तो उस पर किताब पुख्तो शुरू करा दा फ्रीदा। ये तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कभी इंग्लिश कभी उर्दू ये देखो इंग्लिश आम फहम में बात करें, आम फहम में तो ये नहीं करता, तकवा छोड़ दे आप, अभी तकवा को जन्म में रखते हैं। ये मैं आपको भी कह रहा हूं कि तकवा ये बारी ताक रखते हैं, इसको मैं कह रहा हूं तकवा बारी ताक रखते हैं। हां आम फहम में बात करो, अभी आम फहम की बात हो रही है, तो बोला करें, लड़ने की बात नहीं, ये मैं इसको कह रहा हूं, बात सुनिए, अभी बात सुनिए। उनको जो है एतराज नहीं था। चले अब आप चुप करके उनकी बात सुने जो कहते हैं। वो बोलते हैं, उनको एतराज होता है तो वो बोलते हैं। नहीं मैंने तो सिर्फ आपको एतराज करना नहीं बनता, सीधी बात है। देखो मैंने आपको सिर्फ आपकी ये बात की कि हो सकता है कर लेता कि मेरी गलती है, एक मिनट आपने सिर्फ एहसास नहीं हुआ कि मैंने बीच में कोई ऐसे अल्फाज बोल दिए जो मुझे समझ भी नहीं आए, तो फिर मैं तस्लीम करता। असल तो बात यहाँ आके खत्म हो जाती है। अब दरमियान में कोई आदमी ना बोले, आप भी जरा सिर्फ भाई बोले और बाकी सारे सुने। बात सिर्फ यहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि एक शख्स ने कोई बात कही है और वो बात कहने के बाद फौत हो गया, उसकी तशरीह नहीं वो कर सका। अब उस बात का एक माना और मफहूम कुफर का निकलता है और एक माना और मफहूम ईमान का निकलता है। मुझे और आपको इस बारे में क्या तालीमात हैं कि हम उसकी बात को कुफर पर महमूल करें या उसकी बात को इस्लाम पर महमूल करें? यकीनन जवाब यही है कि उसकी बात को इस्लाम पर महमूल किया जाएगा। फिर जिस आदमी ने वो बात कही है देखा जाएगा कि वो किस फन का है, क्या ख्याल है, और आया कि उसके आगे पीछे भी कोई है कि नहीं है, वो लावारिस है। अगर तो जिस फ़न का है उस फ़न के उलमा से उस बात की तशरीह को पूछ लिया जाएगा कि इसकी मुराद और मफ़हूम क्या है। अगर उसकी सही तशरीह कर देते हैं तो उसको मान लेना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तशरीह उन्होंने कर दी, उलमा अहले हदीस ने लिख दिया कि वो असूलन और फ़ुरून जो है ना वो पक्का अहले हदीस था। जिन लोगों ने उन पर इनकार किया है वो फहम के उस यानी दर्जे को नहीं पहुंच सके जिस दर्जे की फहम की ज़रूरत थी। इस वजह से उन्होंने अपने फहम के नाकिस होने की वजह से उनका इनकार किया है, वरना जिसकी फहम कामिल है उसने उसका इनकार नहीं किया। ये बात भी उलमा अहले हदीस तस्लीम करते हैं।
अब बाकी रही सिर्फ एक बात, उनका ये कौल कि जो बुतों की पूजा करते हैं वो भी ठीक है, ये माना। अब इसकी एक तो हो गया इसका उसूली जवाब जो मैंने दे दिया। अब आप जुजियात को लेंगे, उसने ये बात भी कही, उसने ये बात भी कही, उसने ये बात भी कही, हर बात को लेना ये एक बहस को तवील देना है। लेकिन क्योंकि ये बात आ गई, इसकी मैं आपको एक ऐसी तवील जो बिल्कुल सही मुमकिन है, जिसमें कुफरिया माना नहीं पाया जा सकता, अगर वो तवील कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह कुफर वाली तवील की जा सकती है और उसमें आप कोई हर्ज महसूस नहीं कर रहे, तो अगर ईमान वाली तवील कर ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है। उसके लिए मैंने सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, कि ये किसने किया है, ये तुम्हारे बड़े ने किया है। अब वो जो काम बुतों को तोड़ा था वो उसके बड़े ने नहीं तोड़ा था, ये बात मुसल्लम है। वो बुत तोड़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये तुम्हारे बड़े खुदा ने किया है। ये उन्होंने क्यों ये बात कही थी? ये बात उन्होंने उनके एतकाद और उनके नजरिए के मुताबिक कही थी, क्योंकि तुम्हारा अकीदा और नजरिया ये है कि हर चीज करने वाला ये बड़ा खुदा है। तो जब हर चीज करने वाला बड़ा खुदा है तो ये भी बड़े खुदा ने की है, ये तुम्हारे मुताबिक है, ना कि हिंदी, ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मेरे नजदीक ये तुम्हारे बुतों ने तोड़ा है। तो किसी के नजरिए के मुआफिक कोई बात कर देना, सुनने वाला उसको झूठ समझे, और अल्लाह के नबी भी उसको किज़ब से ताबीर करे। बुखारी में है कि अल्लाह के नबी भी फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। तो अब ये देखें, उन्होंने ये जो बात की है ये उनके एतकाद के मुताबिक की है। जो लोग बुतों को पूजते हैं वो हक पर हैं अपने नजदीक। अगर वो अपने आप को हक पर नहीं समझते वो बुतों को पूज क्यों रहे हैं? वो तो अपने आप को हक पर समझ रहे हैं ना, उनको बुतों में खुदा नजर आ रहा है, वो उसकी पूजा कर रहे हैं। इब्ने मुलजम को जब पकड़ा गया और उसको मारा गया, उसको उसके अज़ार जब काटे गए, तो जब उसकी जुबान काटने लगे तो वो रोने लग पड़ा, कहने लगा तू फिर इतनी तुझे अज़ियत हुई, तू नहीं रोया, क्यों रो रहा? कहने लगा जिक्र इलाही से मेरा एक लम्हा भी खाली नहीं था, मेरी जुबान काट दोगे मैं जिक्र कैसे करूंगा? तो उसको उसके अज़ा काटे जा रहे हैं, उसको उसमें तकलीफ नहीं, जब जुबान काटी जा रही है, जिक्र इलाही में खलल आया, उस पर रो रहा वो। तो जब कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है उस पर जान देने में उसको मजा आता है। तो उन्होंने यही कहा ना, जब अजाब उन पर आया तो उसमें एक राहत महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने राहत ही महसूस करनी है। अपने हक मजहब पर जो मर रहे हैं तो वो राहत ही महसूस करेंगे। अब शहीद मरता है, उसका जिस्म कटता है, छन्नी छन्नी होता है, तो वो क्या कहता है?